then we can proceed with the following lecture. So let me share the screen with you all first. All right. So So students, we have seen that in the previous lecture itself, we have described what is work. हमने देखा था physical work को हम लोग work बोलते हैं. Physical work को हम लोग क्या बोलते हैं? Work बोलते हैं. So for example, एक object रहेगा. Object को मैंने क्या apply किया? Force apply किया. तो force apply करने के बाद, if the object shows displacement, मतलब if the object moves, मतलब the object changes its position, only then I can say the work is done. Only then I can say the work is done. So when can I say the work is done? I can say the work is done when I apply force to an object. When I apply force to an object and the application of force causes displacement. The application of force causes displacement. तभी हम लोग बोल सकते हैं the work is said to be done. Right? अच्छा. Moving on students. Moving on. हमने एक फॉर्मूला देखा था वर्क का फॉर्मूला क्या है? W is equals to Fs. W is equal to Fs मतलब क्या? W is equals to, that is work is equals to force into displacement. That is the formula which we looked. अभी ये जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बट अगर मुझे वर्क का स्पेसिफिक फॉर्मूला फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल ये W इज इक्वल टू एफ एस कब होगा स्टूडेंट्स? W इज इक्वल टू एफ एस ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे को पैरेलल होंगे या एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे. जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे या एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ओनली देन विल अप्लाई W is equals to Fs. But students, if the force and displacement they are making an angle with each other, if force and displacement they are making an angle with each other, तो students वो एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा. क्या बोलते हैं उस एंगल को? उस एंगल को अपन बोलते हैं थीटा. दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement. So in such case, the specific formula for work done becomes W is equals to Fs cos theta. Cos theta. Cos theta क्या है? तो cos theta is basically a ratio, जो मैंने जो आपको बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाली हो. You said that we'll be looking at theta कैसे आया, but we are going to see this in the next lecture. We are going to talk about the numericals in this lecture, right? All right. Further moving on, students, we saw about the two types of forces. In the last lecture, we discussed about two types of work. पहला है पॉजिटिव वर्क एंड दूसरा है नेगेटिव वर्क. पहला है पॉजिटिव वर्क एंड दूसरा है नेगेटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब भी थीटा 0 डिग्री होगा. जब भी थीटा कितना होगा? व्हेन द थीटा इज 0 डिग्री. इसका मतलब क्या है? इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट they are in the same direction. The force and displacement they both are in the same direction. तभी हम लोग बोलेंगे the work is positive. The work is positive, right? For example, अगर अपने बॉटल को धक्का दिया and बॉटल आगे मूव हुआ, इसका मतलब you have done a positive work, right? Whereas if I talk about negative work, students, negative work में थीटा कितना होता है? नेगेटिव वर्क में थीटा मतलब एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का है. कितना है? 180 डिग्री मतलब डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 होता है. इट इज अ लीनियर एंगल, राइट? सो इन दिस केस, इन नेगेटिव वर्क स्टूडेंट्स, द फोर्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन backward direction. So nothing but a negative work. What is that kind of work called as? That kind of work is called as negative work. हमने examples देखा. Force of gravity है. Force of gravity on an object which is moving upward. Force of gravity जो नीचे है, object जा रहा है ऊपर, तो ये force नीचे act कर रहा है. Displacement ऊपर हो रहा है, तो the work done by gravity becomes a negative work.
सो ये पहला एग्जाम्पल देखा अपन ने। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा, इफ द व्हीकल इज मूविंग फॉरवर्ड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन whereas frictional force which is experienced by the wheel, ये कैसे होता है, it is in the backward direction. So if you try to understand force and displacement जो है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों कैसे है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. सो देयरफॉर आई से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स डज द नेगेटिव वर्क ऑन द कार. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव वर्क. तो ये स्टूडेंट्स हमने पहले लेक्चर में देख लिया था. दिस इज जस्ट अ स्मॉल रिविजन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ वर्क. अच्छा, आप गेस कर सकते हो फर्स्ट वाला वर्क पॉजिटिव रहेगा, सेकंड वाला वर्क नेगेटिव रहेगा, तो थर्ड वाला वर्क क्या होगा स्टूडेंट्स? थर्ड वाला वर्क क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, थर्ड वाला वर्क होगा जीरो वर्क. क्या होगा? जीरो वर्क. थर्ड वाला वर्क इज जीरो वर्क. द थर्ड टाइप ऑफ वर्क इज जीरो वर्क. अच्छा, जीरो वर्क मतलब क्या? जीरो वर्क मतलब यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऐसे बहुत बड़ा रॉक है, वी हैव अ ह्यूज रॉक. What is the person doing? The person is applying the force on the rock. Force apply किया, but वो force displacement नहीं कर पा रहा. The force is not able to make any displacement. So such kind of work is said to be zero work. What is that work said to be? Zero work. So zero work कब होगा? When you apply force on an object, but there is no displacement. आप फोर्स लगा रहे हो, दीवार है, बाजू में आपके दीवार होगा, दीवार को पुश करो. पुश द वॉल स्टूडेंट्स, एवरीबडी. द वॉल विच इज नेक्स्ट टू यू, पुश द वॉल. what are you doing? You are pushing the wall, meaning you are applying force. But दीवार हिलेगा क्या आपके फोर्स से? Of course not. The wall is not going to move. इसका मतलब the work done by you is nothing but a zero work. What is that? That is nothing but a zero work. अच्छा, जीरो वर्क के लिए स्टूडेंट्स एक कंडीशन है. द कंडीशन इज जो थीटा होता है, दैट थीटा इज 90 डिग्री. कितना होता है थीटा? थीटा होता है 90 डिग्री. अच्छा, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. इन सच केस द वर्क डन इज नेगेटिव. अच्छा, आई एम प्रिटी श्योर स्टूडेंट्स ये आपको ना ये नीचे वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा. फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क जीरो है. बट आई एम प्रिटी श्योर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ गया होगा. द कॉन्सेप्ट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दे आर 90 डिग्री, तो वर्क जीरो कैसा हुआ? Let us consider this with an example, students. Let us consider this concept with the help of an example. तो यहाँ पे कुली है. कौन है? कुली. कुली क्या करता है? सामान उठाता है. Now this coolie, he has lifted a suitcase. He has lifted a suitcase and he is moving in the forward direction. The coolie has lifted the suitcase and he is moving in the forward direction. मतलब सूटकेस का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सूटकेस का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? अच्छा, अभी ये जो सूटकेस है स्टूडेंट्स, इस सूटकेस के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है. दैट फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऑन द सूटकेस स्टूडेंट्स वी हैव अ फोर्स एक्टिंग. वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. अच्छा, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा? कैन यू टेल मी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू एक्ट इन the force of gravity on the suitcase. The force of gravity on the suitcase, it is going to act in the downward direction. The force of gravity on the suitcase will act in the downward direction. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से सूटकेस नीचे आना चाहिए, ये सब नो, डिस्प्लेसमेंट नीचे होना चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट कैसा है? आगे की तरफ हो रहा है. मीनिंग द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर
perpendicular to each other. The force and displacement ये दोनों कैसे है? The force of gravity and the displacement of the suitcase, they both are perpendicular to each other. मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री. तो डिजायर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है. नीचे होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, बट फिर भी ग्रेविटी के वजह से ये जो सूटकेस है वो नीचे जाना चाहिए था. फिर भी the suitcase is moving in the forward direction and hence we say that work कुछ हुआ ही नहीं, जीरो वर्क हुआ, फालतू का काम हो गया, कुछ काम ही नहीं हुआ, जो चाहिए वो हुआ ही नहीं. So therefore we say that the work done is the zero work. Desired direction में work हुआ नहीं. The suitcase should have gone in the downward direction because of the force of gravity, but still the suitcase is moving in the forward direction, meaning the displacement is perpendicular to the force. Yeah, force is perpendicular to the displacement. Therefore, what can I conclude? I conclude that the work done by the force of gravity. Force of gravity कैसा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने सूटकेस के ऊपर जीरो वर्क किया, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा है. So this is about the zero work, students. So what is condition of zero work? The condition of zero work is you apply force. The condition of zero work is you apply force, but there is no displacement. You apply force, but there is no displacement. इसका मतलब क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, द थीटा इज 0 degree. The theta is how much? 0 degree. Therefore, we say that the work done is, sorry, theta, the angle between force and displacement is 90 degree. कितना है? 90 degree. Therefore, we say that the work done is 0. So this is about the three types of work. पहला कौन सा है? पॉजिटिव वर्क जिसमें थीटा होता है 0. पॉजिटिव वर्क जिसमें थीटा होता है 0 डिग्री. पॉजिटिव वर्क जिसमें थीटा होता है 0 डिग्री. नेगेटिव वर्क जिसमें थीटा होता है 180 डिग्री. कितना होता है? 180 डिग्री. नेगेटिव वर्क थीटा होता है 180 डिग्री. एंड द लास्ट वन इज जीरो वर्क. लास्ट वन इज जीरो वर्क जिसमें थीटा होता है 90 degree. That is force and displacement are perpendicular to each other. So these are the different types of work. It's a very important question, students. You can have a question for 2 to 3 marks. Tell me what are the types of work. What are the types of work? You have to explain those types of work. You can see that, students, in your textbook. आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में if you can see on page number, in the textbook, students, on page number, in the textbook on page number 20, there's an orange box, students. Page number 20, there's an orange box. On page number 20, if you have the textbook with you all, you can see an orange box जिसमें लिखा है, the first condition is when the force and displacement are in same direction. When the force and displacement are in same direction, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, तो वो होता है पॉजिटिव वर्क. पेज नंबर 20, स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20. If you do not have textbook, just listen to the statement very properly. What is the statement? When the force and displacement are in same direction. When the force and displacement are in same direction. One second, let me have slide. All right. The force and displacement are in same direction. That is in the forward direction. That is theta 0 degree है. इसका मतलब work done is positive. Second is when the force and displacement are in opposite direction. Force and displacement are in opposite direction. इसका मतलब क्या? Theta is 180 degree, then the work done is negative. And final condition क्या है? The third point says when the applied force does not cause any displacement. When the applied force does not cause any displacement, इसका मतलब क्या?
force and displacement in case the work done by the forces. These are the three very important types of work or very important conditions, right? So this is about the types of work, right? All right. So to move on, students, to move on, I hope you must have understood so far. I hope you must have understood so far, right? All right. Yes. Any doubts? Any doubts? Any doubts? All right. So let us move on, students. Let us move on. All right. Now, students, let me show you. All right. Now we are going to solve the numerical, students. A simple numericals. We are going to look into those numericals. But before that, let me make certain adjustments. All right. So, students, we are going to look into the concept now, right? All right. Okay. Now, before coming to the numerical, students, I hope you are able to see this. I hope you are able to see this. All right. I haven't written anything so far. I haven't written anything so far. All right. Let us look into this, students. Let us look into this. All right. So, all right. Listen to this now. What we have learned, the student, we have learned work. What have we learned? We have learned work, right? Acha. Work ke students, we have two units. Now, let's remember this. Work has how many units? Work has two units. The first unit, the first type of unit is CGS. The first type of unit is CGS. And the second type of unit is, can you tell me what the second type of unit, students? The second type of unit is, MKS. तो वर्क के दो टाइप के यूनिट्स होते हैं. एक तो होता है छोटा यूनिट एंड दूसरा होता है मोटा यूनिट, दैट इज CGS एंड MKS, राइट? ऑल राइट. नाउ मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, ये वर्क का जो CGS यूनिट है, वर्क का जो CGS यूनिट है, दैट इज अर्ग. क्या है वर्क का CGS यूनिट? अर्ग. ERG. वर्क का CGS यूनिट इज अर्ग. वर्क का CGS यूनिट इज अर्ग. ऑल राइट. एंड वर्क का CGS यूनिट इज अर्ग. एंड वर्क का SI यूनिट, इज जूल. वर्क का SI यूनिट इज जूल, राइट? वर्क का CGS यूनिट इज अर्ग एंड SI यूनिट इज जूल. अच्छा, ये जूल क्यों दिया स्टूडेंट्स? ये जो वर्क का कंसेप्ट है, इट वाज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जूल. तो हमने क्या किया, उस साइंटिस्ट को शाबाशी देने के लिए ये वर्क का जो MKS यूनिट है या SI यूनिट है, उसको हमने जूल दे दिया. Are you understanding this? So, in order to give tribute to the contribution of the Joule, work done by Joule, हमने क्या किया? हमने किया वो वर्क का यूनिट जूल, MKS यूनिट वर्क को दे दिया जूल. So work has two units. The first unit is erg, CGS unit is erg, and MKS unit is joule. CGS unit is erg and MKS unit is joule. That is given as capital letter J. Right? All right. So this is what you are supposed to remember, students. This is अच्छा. If I talk about ERG, students, ERG कोई नाम का साइंटिस्ट नहीं है, ये उसको ऐसे ही नाम दे दिया है, राइट? ERG जैसे नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं है, हम लोग ने उसको ऐसे ही नाम दे दिया, राइट? अच्छा. Now there's a very important concept, students. There's a very important concept जहाँ पे you are supposed to remember a relationship between CGS unit and MKS unit
of work. CGS unit and MKS unit of work. अच्छा, तो you have to remember students, 1 joule जो होता है, 1 joule जो होता है, that is equals to 10⁻⁷ erg. 1 joule is equals to how much? 1 joule is equals to 10⁻⁷ erg. अच्छा, अभी 10⁻⁷ erg कहाँ से आया? So let us understand this. So students, we know the formula. What is the formula? Work is equals to force into displacement. What is the formula, students? Work is equals to force into displacement, right? You don't have to write this, just pay attention, students. As of now, just pay attention. So what is the formula? W is equals to Fs, right? अच्छा, अभी वर्क का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? वर्क का एसआई यूनिट इज जूल. वर्क का एसआई यूनिट इज जूल. फोर्स का एसआई यूनिट इज न्यूटन. फोर्स का एसआई यूनिट इज न्यूटन. एंड डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट इज मीटर. डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, राइट? अच्छा, now if you try to understand students, if you try to understand, ये जो न्यूटन है, जूल के जगह पे मैंने क्या लिखा? जूल के जगह पे न्यूटन मीटर लिखा. नाउ इफ यू कैन, यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन. क्या होता है? 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन इज नथिंग बट 10⁵ डाइन. Whereas 1 मीटर, 1 मीटर कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर. कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर, राइट? अच्छा, now if you try to see students, if you see 1 न्यूटन के जगह पे मैंने क्या किया? 1 जूल को मैंने 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर लिख दिया. 1 जूल को मैंने 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर लिख दिया. ना 1 न्यूटन मतलब कितना? 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन मतलब कितना? 10⁵ डाइन. मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मतलब कितना? 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर. 10⁻² मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर. 100 कैन बी रिटर्न एज 10⁻² 100 कैन बी रिटर्न एज 10⁻². तो मैंने 1 मीटर की जगह पे लिखा 10⁻² सेंटीमीटर. क्या लिखा? 10⁻² सेंटीमीटर. अच्छा, अभी क्या किया मैंने? 10⁵ को साथ में लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² को साथ में लिखा, एंड डाइन सेंटीमीटर वैसे का वैसा लिख दिया, राइट? डाइन सेंटीमीटर वैसे का वैसा लिख दिया. Now if you try to understand students, 10⁵ multiplied by 10⁻² कितना आएगा? करेक्ट, वी हैव टू ऐड द पावर्स, मतलब 10⁻7 आ गया. डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर. अच्छा, ये डाइन सेंटीमीटर जो होता है स्टूडेंट्स, डाइन सेंटीमीटर मतलब अर्ग होता है. क्या होता है डाइन सेंटीमीटर? डाइन सेंटीमीटर इज नथिंग बट अर्ग. So students, 1 joule is nothing but 10⁻7 erg. What is 1 joule? 1 joule मतलब 10⁻7 erg. 10⁻7 मतलब पता है आपको स्टूडेंट्स कितना होता है? 1 के आगे 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7. 1 के आगे 7 zeros मतलब 1 joule इतना बड़ा है erg से. Are you understanding this? So this is the relationship between joule and erg, that is CGS unit and MKS unit of work. That is CGS unit and MKS unit of work. Let us look into this again. Let us look into this again. Let us look into this again. Don't worry, we are going to see into this again. अभी अपने को क्या करना है? अपने को CGS एंड MKS यूनिट का रिलेशनशिप ढूंढना है. किसके लिए? वर्क का MKS एंड CGS यूनिट का रिलेशनशिप ढूंढना है. वर्क का
CGS and MKS रिलेशनशिप ढूंढना है। तो वो रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट्स? द रिलेशनशिप इज 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 raised to 7 erg. 1 joule is equals to 10 raised to 7 erg. So this is the relationship what we have to find. अभी उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ फॉर्मूला वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? अच्छा, आगे देखते हैं। नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, वर्क का यूनिट होता है जूल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। सो व्हाट वी हैव हियर इज 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, राइट? अच्छा, अभी स्टूडेंट्स अगर आप याद करोगे, अपने को पता है ना 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। वी नो दिस रिलेशनशिप्स, राइट? तो वैसे ही आपको याद रखना है 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन इज 10 raised to 5 dyne. 1 न्यूटन इज नथिंग बट 10 raised to 5 dyne, राइट? तो मैंने क्या किया, 1 न्यूटन के जगह पे उसका छोटा यूनिट लिख दिया। कितना लिखा? 10 raised to 5 dyne लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कैन बी रिटर्न एज 10 raised to 2 सेंटीमीटर। 100 कैन बी रिटर्न एज 10 to the power 2. तो 1 न्यूटन इज 10 raised to power 5 dyne, 1 meter is 10 to the power 2 सेंटीमीटर। 10 to the power 5, 10 to the power 2 साथ में लिख दिया, dyne सेंटीमीटर साथ में लिख दिया। तो what we have here is 10 to the power 5, 10 to the power 5 multiplied by 10 to the power 2। ये पावर्स को ऐड कर देने का अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एंटाइसिस। कितना आएगा? 10 to the power 7। 5 plus 2 becomes 7 एंड ये डाइन सेंटीमीटर मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। डाइन सेंटीमीटर मतलब होता है अर्ग। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फ्रॉम दिस डेरिवेशन we get the relationship 1 joule is equals to 10 raised to 7 erg. बहुत simple and बहुत important ये relationship है which can be asked in exam for 2 marks, right? So this is how you are supposed to remember the steps, right? अच्छा, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, you have this in the textbook students. This is not a derivation, this is a relationship. ये relationship कैसे आया ये हमने उसको derive किया है, that's it, right? So this is what we have learned, right? अच्छा, so students, I hope you must have understood this, and since you have understood this, let us now look into the very simple numericals, very simple sums based on work, right? Let us talk about the work numericals, right? Acha. So let us talk about the formulas which we have seen, students. Let us talk about the formulas which we have seen. तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखा स्टूडेंट्स? We have seen the formula W is equals to Fs cos theta. W is equals to Fs cos theta. This is the first formula we learned. W is equals to Fs cos theta is the first formula we learned, right? And second formula, general formula क्या देखा अपन ने? W is equals to Fs. W is equals to Fs. This is the second formula we have learned, right? This is the second formula we have learned. All right. So these are the two formulas we have learned. Sorry, these are the two formulas we have learned. अभी ये formulas के ऊपर students we are going to see the sums which are in your textbook, right? So let us start with the very simple sum. Right? Acha. Now I have a sum written on the book. I'll read it for you students. आप क्या करो, आप गिवन डेटा लिखने का कोशिश करो स्टूडेंट्स. लेट अस सॉल्व इट टुगेदर, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? अच्छा, व्हाट डज द सम से?
The sum says Ravi applied a force of 10 Newton. Ravi applied a force of 10 N. 10 N मतलब क्या स्टूडेंट्स? 10 N मतलब 10 न्यूटन. तो रवि ने फोर्स अप्लाई किया. कितना फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि रवि एक बुक था. बुक के ऊपर रवि ने फोर्स एक्ट किया. कितना फोर्स एक्ट किया? फोर्स एक्ट किया 10 न्यूटन का. फोर्स एक्ट किया 10 न्यूटन का. वेरी नाइस मुबारक, इट इज अ पॉजिटिव वर्क. अच्छा, सिंस जब भी रवि ने 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया, ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से गया पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 सेंटीमीटर का. कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ. So if I have to write the given data, students, if I have to write the given data, मुझे क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स? What I have given? I have 10 Newton, 10 N. 10 N मतलब क्या? Force of 10 Newton. Force of 10 Newton. Very nice साहिल. F and S दिया है. F कितना दिया है? 10 न्यूटन का दिया है. फोर्स 10 न्यूटन का दिया है. फोर्स कितना दिया है? 10 न्यूटन का दिया है. देखो 10 न्यूटन का दिया है. एंड 30 सेंटीमीटर मतलब क्या? 30 सेंटीमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट. 30 सेंटीमीटर मतलब क्या? 30 सेंटीमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है. 30 सेंटीमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट. अरमान देखो 300 जूल मिला है. गुड ट्राई, बट गलत आंसर है. द आंसर इज 3 जूल बेटा. द आंसर इज 3 जूल. लेट अस सी हाउ. तो स्टूडेंट्स, अपने को गिवन दिया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फाइंड क्या करने बोला है? वी हैव टू फाइंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द रवि. वी हैव टू फाइंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द रवि. मतलब अपने को वर्क ढूंढना है. व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? वी आर सपोज टू फाइंड वर्क. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? What is the formula we are going to use? Can anyone tell me what is the formula we are going to use? Absolutely correct. We are going to use formula W is equals to Fs. W is equals to Fs. Right? That is force into displacement. Do I have force? Yes. Do I have displacement, students? Yes, I have displacement as well. So can I find work, students? Can I find work? Absolutely I can find work. मुझे force पता है, displacement पता है, मैं work ढूंढ सकता हूँ. But here we have a simple trick. हम physics पढ़ रहे हैं ना. Physics में मैंने आपको क्या बोला था students? We have to always consider which type of units. We have to always consider which type of unit, students. We have to consider which type of unit. MKS unit, very correct. We have to consider MKS और SI unit. चलो, ये न्यूटन MKS यूनिट है क्या? इज न्यूटन MKS यूनिट? यस. तो न्यूटन MKS यूनिट है, मुझे फोर्स का टेंशन नहीं है. बट इज सेंटीमीटर MKS यूनिट स्टूडेंट्स? इज सेंटीमीटर MKS यूनिट? तो मैं 30 को ले सकता है क्या? नहीं. मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर इनटू हाउ? आई हैव टू कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर इनटू मीटर. किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट? तो अगर मुझे 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 100. व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू डिवाइड 30 बाय 100. तो 30 सेंटीमीटर बन जाएगा 30 अपॉन 100 मीटर. कितना बनेगा? 30 अपॉन 100 मीटर. अच्छा, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट द स्टूडेंट्स. अगर आपने इसको 0.3 मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू स्टूडेंट्स. लेट अस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो वर्क वैसे का वैसा, बिकॉज वी डू नॉट नो दैट. इक्वल्स टू. अच्छा, फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फोर्स? वेरी नाइस. मेनी ऑफ देम हैव गॉट 3 जूल्स एज द आंसर. वेरी करेक्ट. अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो. फोर्स कितना है?
फोर्स 10 का है, तो मैंने क्या किया, फोर्स की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा एस कितना है स्टूडेंट्स, अच्छा एस 30 लेंगे या 3/100, 30/100 लेंगे, करेक्ट, एस के जगह पे हम लोग लेंगे 30/100, 30/100। अच्छा बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है स्टूडेंट्स, सो व्हाट कैन आई सिंपली डू इज, ये जीरो कैंसिल हुआ, 30 का जीरो कैंसिल हुआ, दूसरा जीरो कैंसिल हुआ, 10 का भी जीरो कैंसिल हुआ, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ स्टूडेंट्स, वी आर लेफ्ट विथ W, एंड W इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3, W इज इक्वल्स टू 3। अच्छा 3 क्या, 3 चॉकलेट्स, 3 पोटैटोज, नहीं तो क्या आएगा, वर्क है ना, न्यूटन नहीं आएगा, न्यूटन नहीं आएगा, क्या आएगा, 3 जूल आएगा, बिकॉज वी हैव फाउंड वर्क, व्हाट हैव वी फाउंड, वी हैव फाउंड वर्क। So students, the force applied by Ravi is of 3 joule. The force applied by Ravi is of 3 joule. Is this some simple, students? Is this some simple? All right, we'll look into the sum again. All right, we'll look into the sum again. Right? यहाँ पे ध्यान दो, रवि ने फोर्स अप्लाई किया, रवि ने फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो मैंने फोर्स को 10 न्यूटन ले लिया। जब भी उसने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, अ बुक मूव्ड बाय 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, बुक का डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। अभी 30 सेंटीमीटर इट इज नॉट अलाउड बिकॉज वी आर लर्निंग फिजिक्स, एंड फिजिक्स में वी ऑलवेज यूज विच यूनिट स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज यूज सीजीएस के बदले एसआई यूनिट यूज करते हैं। तो सेंटीमीटर ये कौन सा है, सीजीएस यूनिट है, तो ऑफकोर्स मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को जब भी मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तभी मैं क्या करूंगा, उसको 100 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, 100 से डिवाइड। सो व्हाट आई हैव इज डिस्प्लेसमेंट इज 30/100 मीटर। अभी मुझे वर्क ढूंढना है, आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द वर्क डन बाय रवि। तो वर्क डन बाय रवि इज नथिंग बट वी हैव टू फाइंड, तो मुझे फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S। फोर्स को मैंने 10 लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखा, 30/100 लिख दिया, जीरो जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या, 3। तो वर्क डन बाय रवि इज हाउ मच, द वर्क डन बाय रवि इज ऑफ 3 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर ये आपने नहीं किया तो आपका सम गलत हो जाएगा, यू विल गेट 300 जूल एज एन आंसर, राइट। आई होप दिस सम इज क्लियर विथ यू ऑल। सो दिस इज स्टूडेंट्स दिस एग्जाम्पल है ना आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ई वाला क्वेश्चन है, विच इज बेस्ड ऑन द वर्क, which is based on work, right? Acha. Moving on, there is one more sum, students. Now this sum, if you see, this is sum from a solved example. This sum is from a solved example, right? Acha. चलो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जस्ट आइडेंटिफाई द गिवन डेटा, जो जो सिंपल डेटा है ना स्टूडेंट्स, प्लीज आइडेंटिफाई दैट, प्लीज आइडेंटिफाई दैट, राइट? So let us write the given data, students. Let us write the given data together. You can write given data yourself as well. Chalo. The question says, Praveen has applied a force of 100 Newton. मतलब क्या दिया है students? Praveen has applied a force of 100 Newton. 100 N मतलब क्या दिया है? Force दिया है 100 न्यूटन का, फोर्स दिया है कितना, 100 न्यूटन का। बहुत सिंपल है, वो लिख दिया अपन ने। प्रवीण हैज अप्लाइड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल दिया है स्टूडेंट्स, एंगल मतलब क्या दिया है, एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। एंगल मतलब थीटा दिया है, थीटा इज 60 डिग्री। ये सब नो, कैन यू रिकॉल एंगल 60 डिग्री मतलब क्या, एंगल है, हमने अभी पढ़ा था, एंगल मतलब थीटा। तो अपने को थीटा कितना दिया है स्टूडेंट्स, थीटा गिवन अस टू इज, थीटा व्हिच इज गिवन अस टू इज 60 डिग्री, राइट। अच्छा, so Praveen has applied a force of 100 Newton. Praveen has applied a force of 100 Newton on an object at an angle of
60 degree, at an angle of 60 degree to the horizontal. तो जो horizontal है ये force है स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्स. ये surface है, सरफेस के साथ जो थीटा बना है, एंगल बना है, वो कितना है, 60 डिग्री है. दैट इज व्हाट दे हैव गिवन टू अस, राइट. चलो आगे पढ़ते हैं. द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का. एंड 400 जूल वर्क इज डन. What is 400 joule students? 400 जूल मतलब क्या है, वर्क है. तो मैंने लिख दिया W इज इक्वल्स टू 400. 400 डिस्प्लेसमेंट नहीं है स्टूडेंट्स. डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो क्या आता, 400 मीटर आता, मीटर M आता, ये सब नो. बट यहाँ पे क्या है, 400 J है. 400 J मतलब क्या, 400 J मतलब 400 जूल, 400 जूल, राइट. तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज वर्क. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियरली उन्होंने बोला अपने को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब मुझे एस फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, राइट. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है. जो cos थीटा है ना, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा था cos 60 डिग्री इज cos 60 डिग्री उन्होंने दिया है. ये वैल्यू आपको याद रखना नहीं है, ये आपको वैल्यू देंगे. cos 60 का वैल्यू आपको देंगे. cos 60 का वैल्यू इज 1/2. ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है. आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन द स्टूडेंट्स, बट आपको टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट में ये दिया था. cos 60 डिग्री कितना दिया है, cos 60 डिग्री इज 1/2. This is the given data, additional data you have, right. I repeat the question, students. I repeat the question. The question says Praveen ने force apply किया of 100 Newton on an object at an angle of 60 degree to the horizontal. मतलब फोर्स कितना है, 100 न्यूटन है. एंड जो एंगल है थीटा वो कितना है, 60 डिग्री है. फर्दर दे से दैट द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन. मतलब वर्क हो गया 400 जूल का. They have asked us to find the displacement. They have, yes, the additional data will be given in the exam, right. They have asked us to find the displacement, students, and additional data में दिया था cos 60 is 1/2, right. cos 60 is 1/2. अच्छा, ये इतना वियर्ड ऐसा चीजें देख के अपने को एक ही फॉर्मूला याद आ गया है. कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज W is equals to Fs cos theta. W is equals to Fs cos theta. अच्छा, cos theta क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे एंगल दिया है उन्होंने. इफ दे हैव गिवन अस द एंगल वी कैन नॉट निग्लेक्ट दिस cos theta स्टूडेंट्स. हम लोग सिर्फ W is equal to Fs नहीं अप्लाई कर सकते. सिंस दे हैव गिवन अस द एंगल वी हैव टू कंसिडर cos theta as well, राइट. तो यहाँ पे अभी वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट्स. क्या करना है, W सोल्यूशन. W कितना है, व्हाट इज W स्टूडेंट्स, W इज 400. तो W के जगह पे मैंने 400 लिख दिया. इक्वल टू साइन वैसे का वैसा, इक्वल टू साइन वैसे का वैसा. F कितना है स्टूडेंट्स, F फोर्स कितना है, 100. फोर्स इज 100, वो भी अपने को दे दिया है, ये सब नो. फोर्स 100 इज गिवन टू अस, मल्टीप्लाइड बाय. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है. डू आई हैव डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, नो. तो डिस्प्लेसमेंट में एस वैसे का वैसा लिख देगा. whereas cos थीटा कितना दिया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 60 डिग्री. तो मैंने लिखा cos
60 डिग्री, थीटा के जगह पे 60 लिख दिया, थीटा के जगह पे क्या लिख दिया, 60 लिख दिया, यस और नो। अच्छा, बट स्टूडेंट्स इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 400 मैंने वैसे का वैसा लिख दिया इक्वल्स टू 100 वापस वैसे का वैसा लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय एस वैसे का वैसा लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा दिया है क्या अपने को, कॉस 60 का वैल्यू दिया है अपने को। डू आई नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 60? Absolutely correct. I know the value of cos 60, that is 1 upon 2. 1 upon 2. तो मैंने क्या किया, cos 60 के जगह पे 1 upon 2 लिख दिया। Yes or no? Can I do that? Yes, I can do that. अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 50 टाइम्स 100, क्या आएगा, 250 टाइम्स 100। So what are we left with students? 400 is equals to 50 multiplied by s। अच्छा, मुझे s ढूंढना है तो 50 क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 50 के साथ क्या करना पड़ेगा, 50 के साथ 400 को, 50 के साथ 400 को we have to divide it, yes or no? So what will we have, s equals to 400 divided by 50, 400 डिवाइडेड बाय 50। s को जब भी 50 छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था वहां पे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, 5 1 जा 5 8 जा, so therefore students s is equals to 8 मीटर। क्या आएगा, 8 मीटर, because we are supposed to find displacement. So this is the sum which you have in the solved example students, right? So we have seen the two sums students, we have seen the two sums, right? I hope these two sums are clear to you. I'll share the image with you all students, I'll share the image with you all. Meantime, please try to solve these two sums on your own. I haven't asked you to copy these sums, is because I want you to try these sums on your own, right? I want you to try these sums on your own. I'll quickly revise students. I'll quickly revise and then we'll wind up, right? फोर्स कितना दिया है, 100 न्यूटन का फोर्स दिया है, थीटा 60 डिग्री है, थीटा क्या है, 60 डिग्री है, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल इज हाउ मच, 60 डिग्री, तो थीटा इज 60 डिग्री। वर्क डन कितना है स्टूडेंट्स, वर्क डन इज 400 जूल। Displacement we are supposed to find, s we are supposed to find, and एक additional information दिया था cos 60 is 1 upon 2, तो मैंने वो given data में लिख दिया, right? And finally what we do is, अपने पास फॉर्मूला है w is equals to fs cos theta, fs cos theta, मैंने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को, w के जगह पे 400 लिखा, फोर्स की जगह पे 100 लिख दिया, s मुझे पता नहीं है वैसे का वैसा लिखा, एंड cos थीटा इज नथिंग बट cos 60, cos 60 को मैंने 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया स्टूडेंट्स, ये 2 एंड ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 50 जा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद, 400 इज इक्वल्स टू 50 into s, and therefore s will be how much, s will be 400 divided by 50, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 8 मीटर, राइट? सो प्लीज प्रैक्टिस दिस सम स्टूडेंट्स, प्लीज प्रैक्टिस दिस सम, yes, please practice this sums, try to solve these sums on your own, and I'll see you in the next lecture, right? I'll see you in the next lecture. Anyone has doubt students, anyone has doubt, quickly we'll look into the doubts and then we'll wind up here. We'll wind up here if you have a doubt, if you don't have a doubt. Yes. All right. All right. Saidam, Jash Mehta. Saidam, Jash Mehta. है क्या, नहीं मतलब मुझे दिखाया नहीं।